Hello everyone, this is Mansoor Mustafa. This video is the second part for the solution of MCQs from the past papers of O-level physics for the topic of energy, work and power. In first part, we solved some of the questions related to the forms of energy and energy changes. Let's have a recap of the first part. If you haven't watched the first part, so first go to that video, then come back to watch this second part. So in first part, we solved the different questions related to the energy and energy changes. So these are the questions which we solved in the first part. After the first subtopic, that is the energy and energy changes, we discussed very important part of this chapter, that is the generation of electricity from the different sources. That what are the different sources, what are the different types of sources from which electricity can be generated, and we also discussed the different types of power plants. So this is very important, you can say very important topic of this chapter. So you must go through that video so that you can have a clear idea, okay, what are the different power plants and what is the working principle of different power plants. Just like we discussed solar power plant, wind, hydroelectric, geothermal, coal, nuclear. So, and we also discussed what is the nuclear fission and the nuclear fusion process. They are also very important processes. So this was the question which was the last question in the first video. So let's start from this question again. Question is that what uses non-renewable sources? Means that these from these options you have to choose which source is using a non-renewable source. So as we have discussed that nuclear power plant which uses uranium as a source, and that is a non-renewable source. So option B is the correct one. Other options, geothermal, solar, and wind, they are all renewable energy sources. Now, the next question is that which process in the sun produces energy? So, this is the process which produces energy in the sun. That process is called nuclear fusion. ये nuclear fusion क्या होता है? This is the process in which multiple nuclei join together to form a heavier nucleus. So, and this process releases a lot of energy, and this process occurs in the core of sun. So that process which occurs in the by which sun produces energy, that is the nuclear fusion process. Next question is that where is the energy released by the fusion of the hydrogen nuclei to form a helium? So this is the related question with the previous one. So in this you have to answer कि nuclear fusion process जो होता है वो कहाँ पर occur होता है. So we have already discussed that this process occurs in the core of sun. Next question is that which source releases carbon dioxide, a greenhouse gas, when generating electricity? So the source which releases carbon dioxide, or you can say the source which creates air pollution in the environment, so that is the fossil fuels, because when fuels are burned, they generate toxic gases in the form of carbon dioxide, which creates the air pollution. Next question is that energy is released in some power stations and in the sun by either nuclear fission or nuclear fusion. Which type of nuclear reaction applies in each cases? Now, this this power station is talking about the nuclear power station. Means कि आपने बताना है nuclear power station में कौन सा process होता है और sun में कौन सा process होता है. So we have already discussed कि nuclear power station में जो process होता है जिससे energy generate होती है, that process is nuclear fission, whereas in the core of sun जो process occur होता है जिससे energy release होती है, sun की जो heat release होती है, that process is called nuclear fusion. So option B is the correct one. Next question is that which energy source comes from the hot rocks beneath the earth's surface? So this is the source which is called the geothermal energy. Now next question is that two major components of a coal-fired power station are turbine and generator. What are the outputs from the energy of forms of the turbine and the generator?
Now, as in part one, I told you that you must remember the output and input forms of from these portions of the power plant. कि अगर फॉर एग्जांपल टरबाइन है तो टरबाइन का इनपुट कौन सा होता है और उसका आउटपुट कौन सा होता है सेम लाइक फॉर द जनरेटर सो टरबाइन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी रिमेंबर दिस थिंग कि टरबाइन का जो आउटपुट होता है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी and generator is used to produce electrical energy. So it means के generator का जो output होगा that is electrical energy. So the correct option is for the kinetic energy for the turbine and electrical energy for the generator. So option D is the correct one. Now question 28 is that which is a non-renewable source of energy? So ये जो sources given है इसमें से आपने बताना है non-renewable कौन सा है. So as hydro is also a renewable source, solar भी renewable है, wind भी renewable है. So it means के the battery in the watch which is a non-renewable source because when once a battery of the watch is consumed, you have to replace the battery. That's why it's a non-renewable source. Next question is that hydroelectric, tidal, and fossil fuels power stations generate electrical energy. Do these use renewable sources of energy? आपने बताना है इनमें से जो renewable sources हैं वहां पे आपने yes करना है और जो non renewable है वहां पे आपने no करना है. So as we know that hydroelectric and tidal they both are the renewable energy sources whereas fossil fuels are non renewable sources. So option D is the correct one. Now, next question, again, this is related to the power generation. Question is that the diagram represents a part of power station. कौन सा power station है? That is a coal-fired power station. What is the order of the energy changes takes place? आपने बताना है कौन-कौन सी energy changes यहाँ पर occur होंगी. So as we have already discussed in the part one, कि coal powered fire station में सबसे पहले जो आप as an input देते हैं boiler का that is the coal or oil. So in this case, if you are providing coal as an input, तो coal is the form of chemical energy. तो it means के जो हमारा first type of energy होगा that is chemical energy. When chemical energy is burnt in the boiler, it produces heat. तो इसका मतलब है chemical के बाद जो next energy change होगा that is heat. When heat is taken to the turbine, it produces kinetic energy. And then kinetic energy is taken to the generator, which produces electrical energy. So now we can easily find out the sequence that it is chemical, then heat, then kinetic, and at the last we have electrical. So option A is the correct one. Now the next question is that the center of the sun produces large amount of heat. What is the source of this energy? So this is the question which we have already discussed. Source of the energy in the sun, that is the nuclear fusion process. Next question is that coal is burned as a fuel to heat water in a boiler producing steam. The steam drives the turbine which is connected to the electric generator. In which order do the major energy transformations takes place? So this is the same type of question which we have already solved कि आपने सिर्फ major जो energy changes है उनको proper sequence में आपने बताना है. So as we have already discussed, coal power fired power station में जो first form of energy होता है that is chemical energy, then we have heat energy, then chemical, and finally we have electrical energy. So option B is the correct one. Now the next question is that a parachutist has opened his parachute and is falling to the earth at constant speed. What is the principal energy conversion taking place as he falls? Now this is very important when you are solving the question. आपने question को properly read करना है कि what is being asked and what is given in the question. So your answer will be according to that. Just like in this question, it is mentioned कि parachutist is moving at a constant speed. तो अगर ये constant speed के साथ move कर रहा है तो अगर in terms of energy हम कहें तो when object is moving at a constant speed तो इसका मतलब ये होगा its kinetic energy will not change because kinetic energy depend करती है mass पे and speed पे तो definitely mass will remain same. तो अगर speed भी same है that means के kinetic energy will not change.
तो आपने जो एनर्जी चेंजेस जो प्रोड्यूस होंगी वो आपने बताना है। तो इट मीन्स के इन दिस केस यू विल नॉट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दें या इस चेंज से रिमूव कर दें, हटा दें, तो अदर फॉर्म्स विल बी। अब आप देखिए पैराशूट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, इट मीन्स कि इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल रिड्यूस। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी तो एक तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्टेटमेंट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो चेंज अकर होगा दैट विल बी फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट इज द थर्मल एनर्जी। सो इट मीन्स के अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देते हैं, चेंज नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Now the next question is that in a hydroelectric power station, water from the reservoir falls down to a long pipe before entering the turbine. Then turbine turns the generator. What is the overall energy conversion? तो यहाँ पे भी देखिए आपने overall means के what is the first type of energy and what is the last type of energy वो आपने बताना है. So this is the block diagram of the hydroelectric power station. तो देखिए सबसे पहले when water is fallen from this height, तो इसका मतलब है कौन सी एनर्जी जो होगी सबसे पहले चेंज होगी, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर द ओवरऑल एनर्जी कन्वर्जन। अब इसके बीच में भी होंगी, काइनेटिक भी होगी, और इसके अलावा सॉरी देयर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन काइनेटिक एनर्जी व्हिच जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन द जनरेटर। सो इट मीन्स के जो ओवरऑल अगर हम चेंजेस की बात करें, सो दे आर फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which statement about the nuclear fission or nuclear fusion is correct? Now again these are the two processes, आपने बताना है which statement इन दोनों के लिए correct है। Now first is that during the fission hydrogen converts into the helium and releases energy. Now अब आप देखिए न्यूक्लियर फिशन के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम इज ब्रोकन अप इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब है कि ये जो है जो ऑप्शन ए दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फिशन, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी इज दैट ड्यूरिंग फिशन मींस के दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, क्या हो रहा है, यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू डॉटर प्रोडक्ट्स एंड रिलीजेस एनर्जी। तो आप देखिए एग्जैक्टली वही प्रोसेस हो रहा है, यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर प्रोडक्ट्स एंड इट इज रिलीजिंग एनर्जी। तो इट मींस के फॉर दिस क्वेश्चन option B is the correct one. Next question is that hydroelectric, tidal and fossil fuels are the three sources of energy. Which of these sources, which of these renewable energy sources, आपने सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन से जो renewable है। So again we know, as we know that hydroelectric and tidal they are the renewable sources, whereas fossils are non-renewable. So option D is the correct one. Now the next question is that which energy changes takes place when pedaling cyclist using a generator which is called a dynamo to light up his bicycle lamp? अब देखिए यहाँ पर अगेन आपने जो डायनामो होता है, डायनामो इज द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मैकेनिकल एनर्जी। इसके जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है जस्ट बाय रोटेटिंग दैट व्हील, दैट जनरेटर इज कॉल्ड डायनामो। आपने बताना डायनामो में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस generator. So first of all, if the person is pedaling up the cycle, it means ke that person will require kinetic energy to pedal this cycle. तो it means के the first form of energy is the chemical energy. अब जब ये पेडलिंग होगी तो this wheel will rotate. तो व्हील के रोटेशन से कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है, टू रन दिस मोटर, और मोटर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड फाइनली दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू टर्न दिस बल्ब ऑन। तो इट मींस के दैट इज प्रोड्यूसिंग लाइट एनर्जी। तो अब अगर हम इनको सीक्वेंस में अरेंज करें, द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज द केमिकल, then we have kinetic, then electrical, and finally we have
light. So option A is the correct one. Now as we have discussed the questions of the sources of electrical energy, now we move to the next part of this chapter, that is the work, or we call it as a work done. पहले हम इसकी definition देख लेते हैं, then we'll move to the questions. Now according to the concept of physics, work को जो concept होता है, that is measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by external force. It means that if you apply some force and objects cover some distance in either direction, अब वो distance horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है, तो in that condition उसके ऊपर जो होगा means के we'll say there is some work which is done on the object. और इस work को calculate करने का जो formula है, that is force multiplied by distance, and the SI unit of work is joule. It is the same as energy. Okay, now we move to the questions. अब देखिए, first question is that a constant force F pulls the block of weight W up the slope shown. How much work is done in pulling the block up the slope? आपने बताना है इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाने के लिए कितना वर्क परफॉर्म होगा. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये वो फोर्स होगी जो आप ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करोगे. दिस इज नॉट द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो इट मीन्स के दैट फोर्स इज एफ एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस विच दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड. तो जिस पाथ पे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस पाथ का जो डिस्टेंस होगा दैट इज टू बी टेकन टू मेजर द वर्क. तो अब आप देखिए हमारे पास फोर्स क्या हो गई, दैट इज एफ एंड द डिस्टेंस इज एल. सो वर्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, दैट इज ऑप्शन बी. Now the next question, in this question, this is the similar type of question, बट यहाँ पर आपको वैल्यूज की भी है. सो अगेन वील बी यूजिंग द सेम वे कि आपने वर्क कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें सो वील गेट एन वर्क दैट इज द 1500 joule. So option C is the correct one. Now the next question is that a cyclist travels along a horizontal track at a constant speed. The work done by the cyclist is equal to, अगर एक साइक्लिस्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. अब देखिए अगेन क्वेश्चन इज दैट इट इज मूविंग एट एन कांस्टेंट स्पीड ट्रैवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक. तो आपने बताना है कि जो उस साइकिल के ऊपर वर्क परफॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा. सो एज अगेन इट इज मूविंग एट एन कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. इसका मतलब दैट वर्क विल नॉट बी equal to its change in kinetic energy because its speed is constant. So अगर kinetic energy में convert नहीं होगा तो वह वर्क कहाँ पे होगा? That is in the form of thermal energy produced. Okay. Now the next question, a piston of area 10 square centimeters pushed slowly into a very large cylinder containing gas at a pressure of 10 Newton per square centimeter. The pressure of the gas remains constant at the piston moves at a distance 0.10 meter. What is the force of the gas on the piston and what is the work done by the piston? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बताना है कि अगर जो पिस्टन जिसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज आल्सो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर. तो उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करी होगी और फोर्स की वजह से जब पिस्टन मूव करेगा तो वो कितना वर्क डन उसके ऊपर मींस के कितना वर्क डन परफॉर्म करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द फार्मूला ऑफ प्रेशर दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. सो इस फार्मूला से अगर हम फोर्स फाइंड करें दैट विल बी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. So pressure is 10 Newton per centimeter square. Also area is 10. So we'll get 100 Newton. So 100 Newton is the force. अब work done किस तरह find करेंगे? Work done equals to force multiplied by distance. So force we have calculated that is 100 Newton और distance कितना move कर रहा है that is 0.10. So we'll get work as 10 joules. So force is 100 Newton and work is 10 joules. It means the option C is the correct one. Now the next question is that a student uses a Newton meter to pull an object horizontally along rough ground. The student multiplies the Newton meter readings to the distance moved by the object. What does this calculation give? मतलब आपने बताना है जो रीडिंग आप न्यूटन मीटर से ऑब्टेन कर रहे हैं उसको अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, कौन सी क्वांटिटी की कैलकुलेशन मिलेगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूटन मीटर है
that give you the value of force. Remember this thing, न्यूटन मीटर किस लिए यूज होता है? To find out the amount of force. तो इसका मतलब है न्यूटन मीटर की रीडिंग that will represent the force on the object. और अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करें, सॉरी दिस इज नॉट द टाइम, जस्ट करेक्ट दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है ना बेटा? सो अगर हम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट एन क्वांटिटी विच इज द वर्क डन. इट मींस के ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. So again, I'm repeating beta, there is a mistake. So this is not force multiplied by time. So that is the force. Actually, this is the force multiplied by distance, and that will give you the work done. Now the next question is that the diagram shows a girl lifting a box of weight 50 Newton from a low shelf to the high shelf. How much work is done on the box? आपने देखिए अगेन वर्क कैलकुलेट करना है, तो इसके ऊपर जो ये फोर्स अप्लाई करेगी गर्ल, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द दिस बॉक्स. जितना इस बॉक्स का वेट होगा, डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई दैट फोर्स टू मूव दिस बॉक्स. ओके, अब आते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा. अब आप देखिए दिस शेल्फ इज नॉट, सॉरी दिस बॉक्स इज नॉट टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, बट दिस इज टेकन फ्रॉम दिस लो शेल्फ टू द हाई शेल्फ. तो इसका मतलब ये यू आर मूविंग दिस ब्लॉक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो आपने जो डिस्टेंस लेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. आपने स्टार्ट पॉइंट से नहीं लेना. तो ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है 1.8, इसमें से अगर आप ये माइनस कर दें 0.6, so you will get this distance, and that is 1.2. Then simply apply the formula for the work done, that is force multiplied by distance. So you will get a force that is, oh sorry, that work that is 60 joules. It means the option B is the correct one. Now the next question is that an object of mass 5 kilogram is carried a distance of 4 meter across a room at a constant height above the floor. What is work done? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको मास गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, आपने वर्क डन फाइंड करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके ऊपर जो फोर्स होगी, बिकॉज वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होगी और फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी होगी जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा. सो कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज वेट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय g. तो इफ यू आर मूविंग इट हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब इतना उतनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी जितना इसका वेट होगा. तो दैट इज 50 न्यूटन. सो नाउ सिंपली अप्लाई द फार्मूला ऑफ द वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. सो वर्क इज 200 joules. This means के ऑप्शन D is the correct one. Now the next question is that a workman rolls a barrel of weight 2000 Newton up a plank of the length 2 meter and onto a lorry. The back of the lorry is 0.80 meter above the horizontal surface of the road. What is the work done on the barrel against gravity? मतलब आपने ये बताना है कि अगर आप बैरल को मूव कर रहे हैं अप टू दिस हाइट, तो अगेंस्ट ग्रेविटी आप कितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग कि जो अगेंस्ट ग्रेविटी आप वर्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज बीइंग स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इट मींस के आप जो अगेंस्ट ग्रेविटी आप वर्क परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द height, not on the and this distance on which barrel has moved. तो इसका मतलब है हाइट इस ऑब्जेक्ट की 0.80. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब वर्क इसका कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू द फोर्स, और फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही होगी जितना इसका वेट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन वेट, दैट्स 2000 न्यूटन, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से. सो यू विल गेट 1600 joules. एक तरीका तो ये. सेकंड थिंग इज दैट as we are talking about कि ये जो वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटी which will be stored as against gravitational potential energy, तो इसका मतलब है अगर आप इसकी gravitational potential energy कैलकुलेट कर लें, that will also be the same as work. और gravitational potential energy को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो मास mg, इसके मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट, और इसको अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करें, तो इट मींस के that is same thing which we are doing here. So you will get the same answer, that is 1600 joules. So option B is the correct one. Now we move to the next part of this chapter, that is the power. So as we have discussed energy and work, now the next quantity in this chapter, that is power. अब ये power क्या होता है?
that is the rate at which work is done, or you can say the rate at which energy is being converted. Means के कितना क्विकली कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है, कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पावर. और पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सो रेट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम. सो इट मींस के you can represent it in terms of work, तो किसके इक्वल होगा, power equals to work upon time, or you can also represent power in terms of energy, so that will equals to energy divided by time. और power का जो ऐसा यूनिट है that is watt, and the symbol for watt is capital W. so जहां पर भी आपने वर्क कैलकुलेट करना होगा, you will calculate in watts. Now the first question is that 4 students exercise in a gym. Which student does the most work? आपको ये बताना है कि आपको एक्सरसाइज टाइम गिवन है, पावर गिवन है, आपने ये बताना है सबसे ज्यादा वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है. नाउ एज वी हैव द फार्मूला फॉर द पावर, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसमें से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें, दैट विल बिकम पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो ये पावर की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो वी कैन इजीली find out which student is doing most of the work. So that is option C. Now the next question is that a builder lifts 8 slabs from the ground onto the back of a lorry 1.5 meter high. The total time taken is 48 seconds and each slab weighs 200 Newton. How much useful power does the builder produce? आपने बताना है कि इफ देयर आर 8 स्लैब्स और ईच स्लैब का जो वेट है वो है 200, तो इसका मतलब है ओवरऑल वेट फाइंड करने के लिए आपको 8 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस विल गिव यू द टोटल वेट. और आपने उनको मूव कहाँ पे कर रहे हैं, यू आर मूविंग एट एन हाइट ऑफ 1.5 मीटर, और जितने देर में आप मूव करें दैट टाइम इज 48 सेकेंड्स. तो आपने बताना है पावर कितना होगा. सो एस पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. तो पहले हम फाइंड करते हैं वर्क कितना होगा. अब देखें वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और फोर्स इनके ऊपर उतनी लगेगी जितना इनका वेट होगा. सो देयर आर 8 स्लैब्स एंड ईच स्लैब वेट्स 200 न्यूटन. तो इसका मतलब है वेट फाइंड करने के लिए हमने 8 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव अस द फोर्स और द वेट. अब इस वेट को या फोर्स को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1.5 मीटर, सो दिस विल गिव अस द टोटल वर्क डन. अब इस वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड करें विच इज द 48 सेकेंड्स, सो दैट विल गिव अस द टोटल पावर एंड दैट इज 50 watt. इट मींस के ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a crane lifts a load of 6000 Newton through a vertical distance of 15 meter in 30 seconds. What is the average useful power during this operation? So this is the same type of question which we have just solved. आपको फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपने वर्क फाइंड करना है. सो अप्लाई द सेम फार्मूला एंड फाइंड आउट द वर्क. So if you have difficulty to understanding this question, just pause the video and see the solution. Now next question is that a builder carrying 6 bricks climbs a ladder. Each brick weighs 25 Newton. So again यहाँ पर आप देखें टोटल 6 bricks हैं और each brick का जो weight है that is 25 Newton and the builder climbs a vertical distance of 4 meter in 8 seconds. What is the average power? तो यहाँ पर भी देखें first of all आप total weight find करेंगे which will equal to the 6 multiplied by 20 because 6 bricks हैं, each brick का जो weight है 25 है, that will give you 150 Newton, that is the force. उसके बाद आप work done, that is force multiplied by distance. So total force is 150 and the total distance which you are moving, this builder is moving, that is 4 meter. So this will give you 600 joules total work. अब वर्क फाइंड करने के बाद आपने पावर फाइंड करना है, सो दैट इज वर्क अपॉन टाइम. सो वर्क इज 600 एंड टाइम इज 8 seconds, so that will give you 75 watt power. So option B is the correct one. Now this question is exactly same type of question which we have just solved with a slighter change in the values. So this is the solution. This is self-explanatory question. Just see the solution, you will have an idea कि ये question किस तरह solve हुआ है. Now next question is that a small emergency generator supplies. आप देखें इसमें आपको
पावर गिवन है, सॉरी एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 24 आवर्स। आपने फाइंड करना है एवरेज पावर। सो अब आप देखें पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग power in SI unit, then it's necessary कि remaining units must also be in SI system. तो देखिए energy is already given in SI system, but जो time given है that is in hours. तो first of all we have to convert this time into seconds. तो अगर हम 24 hours को convert करें तो each hour contains 3600 seconds, so that will give us 86,400 seconds. अब ये टाइम भी मिल गया, एनर्जी भी गिवन है, सो अब पावर हमने फाइंड करना है, तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो अगर हम डिवाइड करें तो वील गेट 5000 watts. It means option A is the correct one. Now next question, a man weighs 600 Newton. He runs up the staircase of the total height 4 meters in 3 seconds. How much useful work? So इसमें भी देखें, this type of question we have already solved. सबसे पहले आपको वर्क फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और फोर्स कितना होगा, जितना उसका वेट है, दैट इज 600, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर, और ये दिस विल गिव अस द वर्क, और इस वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करें दैट इज 3 सेकंड्स, सो दिस विल गिव अस द पावर दैट इज 8000 watts. So option B is the correct one. Now the next question, again this is the same type of question. Girl जिसका weight 500 Newton है, he is taking 10 seconds to move these stairs which are 5 meter high. तो आपने बताना है what is the average power developed by the girl. तो अब आप देखें अगेन इसमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से, दैट विल गिव यू द पावर. So option C is the correct one. Now the next question is that when a 300 Newton force is applied to a box weighing 600 Newton, the box moves 3 meters horizontally in 20 seconds. What is the average power? So this is again same type of question. So this is a self-explanatory question. Just see the solution. You will have an idea. Now next question, again in this question you have to find the correct option for the power. So power is work done upon time, so simply you have to arrange the values in a correct form. So work done is distance multiplied by force multiplied by distance. So force is 50 Newton, distance is 6.5, and for finding power we have to divide with the time, and time is 7 seconds. So correct option is option D. Now again in this question you have to find the correct option, so that is the same type of question, same like as previous one, so the option B is the correct one. Now we move to the last part of this chapter, that is the efficiency. Now when we talk about efficiency, so as when we discussed different when we discussed electricity generation from the different power plants, so this is, for example, if you are providing 100 joules of input energy, that your purpose is to convert maximum energy into your required output. For example, if you are generating electricity, तो जिस सोर्स से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका पर्पस ये होता है कि आपको जो आउटपुट मिले दैट मस्ट बी मैक्सिमम, मीन्स कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट आपको आउटपुट में कन्वर्ट होके मिले. बट इट्स नॉट ऑलवेज, मीन्स के इट्स नॉट ट्रू, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपको 100% आउटपुट मिले, बिकॉज व्हेन वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ अदर फॉर्म्स में भी एनर्जी कन्वर्ट, मीन्स के जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ पोर्शन अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नॉट अ यूजफुल फॉर्म, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें नहीं होता. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गेट एन आउटपुट विच इज लेस देन द इनपुट. तो इन दैट सेंस वी यूज अ टर्म एफिशिएंसी. इस एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि कितने परसेंट हमें आउटपुट मिला, मीन्स के कितने परसेंट ऑफ द इनपुट जो है हमारा वो आउटपुट में कन्वर्ट होकर मिल रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एफिशिएंसी. तो ये एफिशिएंसी होता है क्या, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ द एनर्जी और पावर. हम इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी आउटपुट और पावर आउटपुट टू द एनर्जी और पावर इनपुट टू इन अ गिवन सिस्टम. So that comparison, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रोवाइडिंग 100 joules ऑफ लेट्स से कोल और आपको मिल रही है 80 joules ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इट मीन्स के आपका जो पावर प्लांट है उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 80%. इट मीन्स के 20% इज बीइंग लॉस्ट इन अदर फॉर्म्स.
सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी इज एनर्जी और पावर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी करें तो यू विल राइट इट एज एन एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट, और इफ यू आर मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ पावर सो यू विल राइट इट एज अ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मल्टीप्लाई बाय 100 हम इसलिए करते हैं कि दैट इज मेजर्ड इन परसेंटेज, बट you will find in some question it's not measured in percentage। इसकी जो वैल्यू होती है अगर आप परसेंटेज में नहीं मेजर करें so that value is from 0 to 1। 1 is the maximum value which is an ideal, जो आपको कभी भी प्रैक्टिकली नहीं मिलती, that is from 0 to 1। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे so definitely that will give you a value from 1% to 100%, इसके दरमियान होगी, ठीक है। या फिर हम इस एफिशिएंसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यूजफुल एनर्जी और यूजफुल पावर। अब आप देखें, अगर आप इन टर्म्स ऑफ जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो जो आपको आउटपुट मिलता है दैट इज द योर यूजफुल फॉर्म, और उसको अगर आप डिवाइड करें सप्लाइड एनर्जी और सप्लाई पावर से विच इज योर इनपुट, सो अगेन दैट इज सेम एज द एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट। सो आप इन दोनों फॉर्म्स में एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And as I told you that is measured in percentage, but in some questions you will find its value not in percentage, so that value will be from 0 to 1। Okay, now let's solve the questions related to the efficiency। First question is that what is efficiency? आपने सिर्फ correct formula identify करना है efficiency का। So this is what we have discussed, that is the useful energy output divided by total energy input। Now first question is that this is the first calculation question related to the efficiency, that is input power to the lamp is 6 watt। आपको क्या चीज गिवन है? इनपुट पावर नॉट एनर्जी, और उसके आगे आपको क्या गिवन है? द लैम्प वेस्ट्स 2.7 joules ऑफ एनर्जी। एक तो आपको इनपुट पावर गिवन है प्लस आपको वेस्ट गिवन है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कि 2.7 इज बीइंग वेस्टेड in 3 seconds। what is the efficiency of the lamp? आपने लैम्प की एफिशिएंसी बताना है। so remember this thing कि efficiency फाइंड करने के लिए you must have input and output power और इनपुट और आउटपुट एनर्जी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास इनपुट पावर है और आउटपुट एनर्जी आप डायरेक्टली एफिशिएंसी कैलकुलेट, दिस विल बी इनकरेक्ट। या तो आपके पास दोनों पावर्स होने चाहिए इनपुट एंड आउटपुट, या फिर आपके पास दोनों एनर्जीज होनी चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन इनपुट पावर, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? सो दिस इज द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फाइंड करें तो आपको इस पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी में, फिर आप एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। सो आप इनपुट एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपको इनपुट पावर गिवन है, बिकॉज पावर इज energy divided by time, so energy will be power multiplied by time। so power is 6 and time is how much? 3 seconds, so that will give you input energy that is 18 joules। ये तो मिल गई आपको इनपुट एनर्जी। अब आपने एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आउटपुट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो आउटपुट एनर्जी आप कैसे फाइंड करेंगे? सो एज यू आर प्रोवाइडिंग 18 joules, उस 18 joule में से 2.7 joule ऑफ एनर्जी जो कि वेस्ट हो रही है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो एनर्जी होगी दैट विल बी योर आउटपुट एनर्जी। सो आप आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे? इनपुट में से अगर आप वेस्ट को माइनस कर दें दैट विल गिव यू द आउटपुट एनर्जी दैट इज 15.3 joules। अब आपके पास इनपुट एनर्जी भी मिल गई, आउटपुट एनर्जी भी मिल गई। अब आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी। अगेन दिस इज नॉट मेजर्ड इन परसेंटेज, तो जिस फॉर्म में आपको गिवन होगा ऑप्शन आपने उसी फॉर्म में कैलकुलेट करनी, मींस के यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई विद द 100। सो सिंपली divide the output energy to the input energy, so you will get answer 0.86। it means के option D is the correct one। अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव मेजर्ड इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ पावर मेजर करें फिर हम देखते हैं कि विल इट बी सेम और डिफरेंट। अब देखें पावर इन टर्म्स ऑफ पावर कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखें आपको जो आउटपुट एनर्जी मिलेगी, यहाँ से जो आउटपुट एनर्जी मिली है मींस के दैट इज अगेन इनपुट एनर्जी माइनस दैट विल गिव दैट इज द वेस्ट। तो आपको जो इनपुट आउटपुट एनर्जी मिली दैट 15.3 जूल। अब इस एनर्जी को आप कन्वर्ट करें आउटपुट पावर में। कैसे आउटपुट पावर में कन्वर्ट करेंगे? output power equals to energy upon time, so if it is output power that will be output energy upon time, so output energy upon time that will give you 5.1 watt। so this is the output power, 5.1 is the output power and 6 watt is the
इनपुट पावर। अब आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सो इन टर्म्स ऑफ पावर दैट इज पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, सो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब है आप एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ पावर भी फाइंड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर क्वेश्चन में आपको एक एनर्जी गिवन है, एक पावर गिवन है, सो आपने या तो जो आपको मीन्स के दोनों को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना है या फिर दोनों को पावर में कन्वर्ट करना है, ओनली देन you will be able to find the correct value of efficiency. Now the next question is that the diagram shows the energy transfer through a machine. The machine is 50% efficient. मतलब अगर for example what is the which equation is correct, आपने correct relation बताना है input, useful और waste energy का. So अगर हम इस question को solve करें, let's consider कि if we are providing 100 joules of input energy. अब देखिए अगर हम 100 जूल इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस मशीन इज 50% एफिशिएंट। 50% एफिशिएंट का मतलब ये 100 से जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट इज 50 जूल्स, ठीक है ना, बिकॉज ये 50% एफिशिएंट है, तो इसका मतलब हमें आउटपुट जो मिलेगा वो 100 का 50 जूल मिलेगा। तो अगर ये 50 जूल आउटपुट मिल रहा है, तो इट मीन्स के रिमेनिंग जितनी भी एनर्जी होगी दैट विल बी एज वेस्टेड एनर्जी। सो अगर ये 50 हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट इज एज अ वेस्टेड एनर्जी। अब हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, अब हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। नाउ विल इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द करेक्ट इक्वेशन। अब देखें फर्स्ट है ऑप्शन ए है, इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। इज इट ट्रू? नो, बिकॉज इनपुट हमारे पास 100 है, आउटपुट 50 है, सो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर हम ऑप्शन बी को देखें, इट इज सेइंग दैट यूजफुल आउटपुट एनर्जी मींस के दिस वन किसके इक्वल है, इनपुट एनर्जी प्लस वेस्टेड एनर्जी। तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये किसके इक्वल है, इनपुट एनर्जी माइनस वेस्टेड एनर्जी, नॉट प्लस। तो इसका मतलब है दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब आते हैं सी पे। सी इज सेइंग दैट वेस्टेड एनर्जी, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये किसके इक्वल है, इनपुट एनर्जी प्लस यूजफुल आउटपुट एनर्जी। सो अगेन दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज वेस्टेड एनर्जी भी किसके इक्वल होगी, इनपुट माइनस यूजफुल आउटपुट। सो अगेन दिस इज नॉट ट्रू। नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, डेफिनेटली यही आंसर होगा। चलें इसको कंफर्म कर लेते हैं, वेस्टेड एनर्जी इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। तो आप देखें जितना आपको आउटपुट मिल रहा है उतना ही वेस्ट मिल रहा है, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट वन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now, this question is related to the electrical power, which is not the part of this chapter, but I am just explaining you this question कि ये question किस तरह solve होगा। तो इसमें भी आप देखें, a transformer connected to a 240 volt mains supply is used to light up a 224 watt lamp। मतलब ये जो लैम्प का आउटपुट है, मीन्स के दिस इज एन पावर आउटपुट विच इज 24 watt। आपने फाइंड करनी है इस लैम्प की इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इफ द गिवन इनपुट वोल्टेज इज 240 और इनपुट करंट इज 0.11 एम्पियर। तो आपने फाइंड करनी एफिशिएंसी। तो देखें एफिशिएंसी के लिए अगेन वील रिक्वायर इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 24 वाट। पहले हम फाइंड करते हैं इनपुट पावर। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, the formula we use for the power, that is energy upon time or work upon time, is for the mechanical power. So if we talk about electrical power, that electrical power is equals to current multiplied by voltage. I is the symbol of current and V is the symbol of voltage. So first of all इसमें से हम input power find करेंगे by multiplying these two quantities. So we'll get 26.4 watt. So this is the input power. अब ये हमारे पास इनपुट पावर आ गया, आउटपुट पावर इज ऑलरेडी गिवन। नाउ सिंपली वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी, दैट इज 0.91, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेन लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 30 मीटर। इट यूजेस 60,000 joules ऑफ एनर्जी। मींस के अगेन आपको क्या गिवन है, इनपुट एनर्जी विच इज द 60,000 joules और आपको वेट गिवन है 100 न्यूटन जिसको आप मूव कर रहे हैं अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। आपने बताना है एफिशिएंसी ऑफ द क्रेन। तो देखें अगेन एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी चाहिए होगा, या आप ये कह लें जो इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क चाहिए होगा, या फिर पावर चाहिए होगा। तो अगर आप देखें ये जो गिवन है इन डिस्टेंस एंड फोर्स,
तो इसमें से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. So that work will become force multiplied by distance. So that force is 1000 and the distance is 30. So this 30,000 Newton is the total work done. Now as this is taken to the height of 30 meter, so it means that work will be converted as an gravitational potential energy. तो आपके पास जो output energy हो गई, that is 30,000 joules of energy. अब देखें, this is the output energy और input energy आप कितनी provide करें, that is 60,000 joules. तो आपके पास output energy भी है, इनपुट एनर्जी भी है. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द एफिशिएंसी, दैट विल गिव यू द 50%. अब देखें ये क्वेश्चन, इसको हम विदाउट कैलकुलेटिंग भी हम बता सकते हैं. देख किस तरह, देखें अगर आपको आउटपुट मिल रही है 30,000 एंड इनपुट इज द 60,000, दैट मींस के द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज द 50%. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर 65. अब देखिए in previous questions हमने efficiency calculate करनी थी. Now in this question we are already given the efficiency और हमें और क्या given है, input energy. आपको कितनी given है, 12 किलो जूल. आपने बताना यूजफुल एनर्जी आउटपुट. तो इट मीन्स कि आपको efficiency given है, input energy given है और आपने output energy फाइंड करनी है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर efficiency. तो इसमें देखें अगर हम वैल्यूज पुट करें, एफिशिएंसी दैट इज 65%, आउटपुट एनर्जी जो कि हमने फाइंड करनी है, इनपुट इज 12 किलो जूल. अब आप देखें 100 if multiplying on this side, so if we check on the opposite side we will divide, so that will give you the energy output. इसी तरह 12 जो यहाँ पर डिवाइड करा है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा. नाउ इफ वी सॉल्व दिस कंप्लीट टर्म, सो वी विल गेट आंसर दैट इज 7.8 किलो जूल्स, दैट इज द आउटपुट एनर्जी. इट मींस के ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Now next question, the energy output of a generator depends on its efficiency and the energy input. Which set of values is correct? अब देखें आपको इनपुट और आउटपुट एनर्जीज गिवन है, एफिशिएंसी की वैल्यू भी गिवन है. सिंपली आपने ये बताना है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है. तो किस तरह पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एफिशिएंसी सबकी, फिर हम कंपेयर करेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो अब देखें अगर हम कंपैरेटिवली देखें ऑल ऑप्शंस को, only option B we are getting the same value, so that is correct option for this question. Now next question, a crane lifts a load of 1000 Newton through a vertical height 3 meter in 10 seconds. The input power to the crane is 500 joules per second. What is the efficiency of the crane? अब देखें एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन में. इट इज रिटन दैट दिस इज द पावर, बट यहाँ पर आपको पावर का जो यूनिट है वॉट वो नहीं गिवन. सो उसकी जगह पे आपको गिवन है जोल पर सेकेंड. सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो जोल पर सेकेंड होता है दैट इज इक्वल टू वॉट, बिकॉज वॉट किसके इक्वल होता है, पावर, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी इज इन जोल एंड टाइम इन सेकेंड. तो जोल पर सेकेंड इज सेम एज वॉट. सो डोंट कंफ्यूज इट. सो दिस इज द इनपुट पावर. आपको इनपुट पावर की भी नहीं, तो पहले आपको आउटपुट पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू विल कैलकुलेट एफिशिएंसी. और आउटपुट पावर किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन टाइम. और वर्क कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाइंग फोर्स विद द डिस्टेंस, सो दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 3. एंड अगर उसको आप टाइम से डिवाइड करें, दैट विल गिव यू द पावर आउटपुट, दैट इज 300 वाट. सो ये आ गया पावर आउटपुट. पावर इनपुट इज 500. अब आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 0.6. इट मींस के ऑप्शन सी इज द करेक्ट. Now we have last question. Energy from the petrol is used to operate an engine. The engine drives a generator which produces electrical energy. अब आप देखें आपको सारी वैल्यूज गिवन है. एनर्जी फ्रॉम द पेट्रोल दैट इज 400 जूल. और आउटपुट, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट द आउटपुट जो जनरेटर पे मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट. आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज 100 जूल. आपने ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी, आपने सिर्फ इस पोर्शन की एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करनी, ओवरऑल. सो अगेन दिस इज द इनपुट एनर्जी, दिस इज द आउटपुट एनर्जी. हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सो दैट विल गिव अस वैल्यू 25%. इसको भी हम बगैर सॉल्व किए हम फाइंड कर सकते हैं. अगर 400 से हमें 100 जूल मिल रही है, इट मींस के वी आर ओनली गेटिंग 1/4 ऑफ द input as an output, so the efficiency will become 25%. So sorry, we have we have two more questions. The input power to the motor is 300 watt. In 20 seconds it lifts a load of 400 newton through a height of 6 meters. What is the efficiency of motor? तो यहाँ पर भी देखें आपको
पावर गिवन है एज एन इनपुट पावर, और आउटपुट की जगह पे आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से, दैट विल गिव यू पावर आउटपुट। फिर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 40%। Now we have the last question. A car is driven along a level road. The total energy input from the petrol is 60 kilojoules. Input energy आपको given है, and car waste. Remember this thing कि this is not output. 65 में से कितना वेस्ट करिए, 45 जूल। व्हाट इज द एफिशिएंसी? तो सबसे पहले आप पावर एनर्जी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। किस तरह पता चलेगा? 60 किलो जूल जो कि इनपुट है, इसमें से अगर आप वेस्ट माइनस कर दें तो दैट विल गिव यू पावर आउटपुट, सॉरी एनर्जी आउटपुट, दैट इज 15 जूल। अब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 जूल इज द इनपुट एंड 60 जूल इज द, सॉरी 15 जूल इज द आउटपुट एंड 60 किलो जूल इज द इनपुट। सॉरी दिस इज नॉट 50 जूल बट दैट इज 50 किलो जूल। अब आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल गिव यू 25%। So this is all about these questions. I hope these questions are clear to you, but if you still feel any difficulty in understanding these questions, or if you have any query related to any topic of physics, you can contact